Hello student, welcome to next lecture. From today we start the chapter 3rd, that is control structures. This chapter have 12 marks. Okay, so today is our first lecture. So let we start the lecture. First we see the learning outcome of this video. Okay, so first we see what is decision making statements. Then we see if statement, and then we see if else statements. Okay, so these are the various learning outcome of today's video. So let's start. Okay, so first topic in control structure are decision making statement in C. Okay, in this chapter control structure mainly we see the two part. First one is decision making statement and second one is looping statement. Okay, so first we see decision making statement and then we see looping statement. Okay, so first what is decision making statement? I give one example. Okay, in real life we take the decisions at every stage of the life. Okay, basic example, आपने previous year में 10th पास किया. Okay, so after that you take decision, I want to complete diploma. Okay, आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे डिप्लोमा करना है. ओके, उसके बाद में और एक डिसीजन आया कि डिप्लोमा करना है लेकिन कौन से ब्रांच में करना है, कंप्यूटर में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, सिविल में करना है. ओके, सो दैट टाइम आपने डिसीजन लिया मुझे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी आपका ब्रांच रहेगा मुझे उसमें डिप्लोमा करना है. ओके, सो इन रियल लाइफ वी टेक सम डिसीजंस. ओके, and depend on that decision our life is go on. Okay, so similarly in programming also there are some, at some stage there are some decisions are very important, and depend on that decision the execution of program is depend. Okay, so let me see the first point is decision making statements in C programming language decide the direction of flow of the program execution. Okay, so वो भी डिसीजन रहेगा जिसके ऊपर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो डिपेंड रहेगा. ओके, देन सेकेंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन. ओके, सो व्हेन वी टेक सम डिसीजन. ओके, सिंपल आई गिव वन एग्जांपल. ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक एल्गोरिदम देखा था, राइट एल्गोरिदम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड. ओके, अभी इवन ऑड के लिए फर्स्ट अपने को एक कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा. क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कंडीशन. ओके, वो कैसा क्रिएट करेंगे? अभी इवन और ऑड नंबर, हाउ वी चेक द इवन नंबर एंड ऑड नंबर? सिंपल, फर्स्ट वी डिवाइड दैट नंबर बाय 2 एंड इफ द रिमाइंडर इज 0 दैट टाइम इट इज इवन नंबर. ओके, इवन नंबर का मीनिंग सबको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा रहेगा. अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, ओके, सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज इवन नंबर. ओके, इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट टाइम इट इज ऑड नंबर. ओके, इवन नंबर कौन से है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, these are the even numbers. Odd number 1, 3, 5, 7, 9, these are the odd numbers. Okay, so order of execution of the statement based on the certain condition. ओके, वो कंडीशन के ऊपर वो चेकिंग करेगा. आफ्टर दैट इट टेक द डिसीजन. ओके, इफ द कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज इवन. इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट प्रिंट नंबर इज ऑड. ओके, सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, आउटपुट ऑफ दैट कंडीशन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिपेंड. सो second point is that. Okay, third one, decision making statement available in C. Okay, so there are some statement, list of statement. कौन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज में? फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट. ओके, सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, थर्ड वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. ओके, फोर्थ वन इफ एल्स इफ लैडर, एंड फिफ्थ वन स्विच स्टेटमेंट. सो दिस 5 आर कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी. अगर आपको किसी ने पूछा example of decision making statement in C, so tell them this 5. Okay, so ये 5 क्या है? decision making statement.
So in this chapter we see first two. In this lecture we see the first two, if statement and if else statement, so in detail, and other three are we see in some next lectures. Okay, so let's see first the if statement. Okay, here if statement, if, write in small letter. Okay, so it is one keyword in C. The first point is the if statement check the expression or condition inside the parenthesis. Okay, if स्टेटमेंट क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जो ब्रैकेट में लिखा है वो कंडीशन सर्कल ब्रैकेट में. ओके, सेकंड पॉइंट, द इफ स्टेटमेंट रिटर्न द बुलियन वैल्यू. ओके, ये जो इफ स्टेटमेंट है क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू. कौन सी बुलियन वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो सिंपल बुलियन इफ स्टेटमेंट का आउटपुट क्या रहेगा, कंपाइलर को क्या बताएगा वो, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. ओके, सो सिंपल पॉइंट इज इफ स्टेटमेंट रिटर्न बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. थर्ड पॉइंट इज इफ द कंडीशन इज ट्रू. ये जो ब्रैकेट में वो कंडीशन चेक करने वाला है. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड. ओके, हियर see this syntax, if in bracket we write the condition. Okay, so if the condition is true, okay, दो possibility, either true रहेगा नहीं तो false रहेगा. Okay, अगर true है तो ये statement execute करेगा वो. Okay, जो ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूटेड. ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा वो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली इसके बाद में जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा. सो सिंपल, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट स्किप द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा. ओके, हियर आई गिव वन एग्जांपल टू चेक ए एंड बी. ओके, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा, a इज ग्रेटर देन b. अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन इट स्किप द स्टेटमेंट, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके, अभी इट इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ a एंड b, ये जस्ट एग्जांपल लिया है. ओके, सो दिस इज इफ स्टेटमेंट, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, हियर आई गिव फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. ओके, हियर वी राइट द कंडीशन. If the condition is true, then statements are executed, and if the condition is false, then directly it skips the statement and directly end if. Okay, so this is flowchart of if statement. Next one, here I write one program, example of if statement. Here program is develop a C program to check number is greater than 100. क्या चेक करना है, एक नंबर एंटर, एक इनपुट नंबर रहेगा, उसको चेक करना है 100 ग्रेटर देन 100 है या नहीं है. ओके, सो हियर इज द इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन इट प्रिंट द मैसेज, अदरवाइज इट स्किप द स्टेटमेंट. सो फर्स्ट हियर आई डिफाइन टू हेडर फाइल्स. ओके, ऑल ऑफ यू नो द व्हाट इज यूज ऑफ हेडर फाइल्स. देन आई डिफाइन मेन फंक्शन. देन इनसाइड मेन फंक्शन आई डिक्लेयर वन इंटीजर वेरिएबल num. Okay, then we use the clr function, clr to clear the screen. Then by using printf we print one message, enter the number. Okay, then semicolon. Then by using scanf we store the value. For that we use this format specifier %d, address num. Okay, so enter जो भी value enter होगा वो num में store हो जाएगा. Okay, then here we use the if statement. Okay, if remember this condition. Okay, all of you must make the conditions. Okay, according to program. ये आपको आना चाहिए, प्रोग्राम के ऊपर आपको कंडीशन बनाने को आना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा है, num is greater than 100. Okay, if the condition is true then these statements are executed. If the condition is false then these statements are skipped by compiler. Okay, अभी यहाँ पे num का वैल्यू पे डिपेंड है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. ओके, तो प्रिंट क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर इज ग्रेटर देन 100, अदरवाइज कीप द स्टेटमेंट एंड डायरेक्टली इट क्लोज द प्रोग्राम. वेट ch पे आएगा और क्लोज कर देगा प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज ग्रेटर देन 100. आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज फर्स्ट एंटर द नंबर. यहाँ पे एक ए स्ट्रिंग आ जाएगा. देन यूजर ने एंटर किया यहाँ पे 105. ओके, सो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा 105 कहाँ पे स्टोर हो गया, नम में. सो नम का वैल्यू है 105 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन इज ट्रू, देन इट प्रिंट दिस स्टेटमेंट.
इफ यूजर एंटर, यहाँ पे अगर यूजर ने 99 एंटर किया, ओके, दैट टाइम दिस स्टेटमेंट्स आर कीप, यू नॉट गेट दिस सेकंड लाइन, ओके, तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा. ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम and simple example of if statement. Okay, next we see second if else statement. Now see point, first point is the if statement check the expression and condition inside the parenthesis. First point also same as if statement, वो जो ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन लिखा है उसको वो चेक करेगा. देन द इफ स्टेटमेंट रिटर्न बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. अगेन वही एक क्या रिटर्न करेगा कंपाइलर को, ट्रू और फॉल्स. If the condition is true, statement inside the body of if are executed. Okay, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. Okay, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन इट स्किप दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट दिस पार्ट. ओके, तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, ट्रू है तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा. फॉल्स है तो ये ब्रैकेट में. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल. एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा. ओके, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a इज वन नंबर इंटीजर वैल्यू, उसमें अगर कोई वैल्यू स्टोर किया है मैंने, तो a इज ग्रेटर देन 0 इफ द कंडीशन इज ट्रू. ओके, 0 से ग्रेटर है मतलब a इज पॉजिटिव नंबर. ओके, सिंपल मैथमेटिक्स. अगर 0 से नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर रहेगा. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, a 0 से ग्रेटर है तो वो प्रिंट करेगा a इज पॉजिटिव. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन इट स्किप दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट, a इज नेगेटिव नंबर, अगर ये फॉल्स है तो. ओके, सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी सी द फ्लो चार्ट. Okay, first start, then after if statement here, if condition. Okay, यहाँ पे मैंने condition लग दिया. When there is condition in flowchart, that time we use the diagonal. Okay, if the condition is true, yes मतलब true. Okay, condition true, yes रहेगा तो execute code in if block. Condition false रहेगा तो execute code in else block. Then it stop the outside the if statement, if else statement. Okay, so this is simple flowchart of if else statement. Next example of if else statement. Okay, here develop a program to simple C program to check number is even or odd. Okay, this is very important program. Many times this program is asked in examination. Okay, so first we define two header files, then main function, then we take one integer variable num. Okay, then clr str to clear the screen. Then we define one message, printf enter the number. Okay, after this statement user enter one number and that number store by using scanf %d को वेरिएबल num में स्टोर कर देंगे. Okay, after that here for even and odd the condition is very important. If in bracket I write num modulus 2 is equal to 0, modulus operator give the remainder in division. num को 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा. चेक द रिमाइंडर इज चेक विद 0. इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 रहेगा देन कंडीशन इज ट्रू. ओके, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट प्रिंट द नंबर इज इवन. ओके, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन इट एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट, नंबर इज ऑड. ओके, देन लास्ट गेट ch क्लोज द प्रोग्राम. सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम. Here output is enter the number. Okay, user ने enter किया 25 divide by 2. Okay, so remainder is 1 is equal to 0. This condition is false, so it print number is odd. Okay, so this is simple program to check number is even or odd. Okay, thank you.